So students, you can see that was all in exercise 10.4. Now it's time to move on further to exercise 10.5. But before that, we have to understand some theorems on which exercise 10.5 is actually based, right? So to understand the theorems, we have to understand a topic here. जो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेने जा रहा हूँ. You can see the topic is angle subtended by an arc of a circle, right? So जैसा कि arc आपको पता है क्या होती है. You can see this AB, you can see is a chord of the circle. You can see AB. So ये AB chord के corresponding ये जो AB curve है circle का, ये क्या होता है? Arc of, you can see this circle corresponding to chord AB, right? Here you can see there is another chord of the circle CD. Now corresponding to this chord, this CD is the arc of the circle, right? So ये भी क्या है? एक arc है. Now you can see AB arc को मैं कैसे लिखूंगा? AB like this. Then CD arc को क्या लिखूंगा? CD like this, right? So these are the two arcs here forming corresponding to respective chords, right? So chord के respect में corresponding arc होती है, right? Now let me just read this thing first. So if two chords of a circle are equal, now if it is given here that AB is equal to CD, यानी कि ये दोनों chords की length क्या अगर same given है, so if two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent, right? So यानी कि अगर ये chords की length equal है तो इनके corresponding जो arcs हैं यानी AB और CD ये भी क्या होंगी? Congruent होंगी, right? यानी कि equal in length, right? So ये arc भी आपस में क्या हो जाएंगी? Congruent हो जाएंगी और you can say equal, right? Now इस चीज का vice versa यानी कि converse जो है वो भी हम बोल सकते हैं that if two arcs are congruent, you can see अगर ये AB arc और CD arc congruent है या equal है, then their corresponding chords are also equal. So फिर ये AB और CD chords भी क्या होंगी? आपस में equal होंगी. यानी कि अगर ये arcs equal है तो chords भी equal होंगी, and its converse is अगर chords equal है तो उनके corresponding arcs भी क्या होंगी? Congruent होंगी या फिर equal होंगी, right? So what do we call it? Now this thing is clear to you now. Now if I just correlate this thing, you can see further with this that also the angle subtended by an arc at the center is defined to be the angle subtended by the corresponding chord. Let me just explain you up to here, right? So आप कहते हैं angle subtended by an arc. So अगर आप बात करते हैं यहाँ पे suppose कीजिए कि ये जो AB के corresponding arc है, this AB arc, right? So ये center पे कुछ angle बना रही है like this. So this is the angle made by the arc AB. So ये arc के द्वारा center पे बनाया गया angle जो है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि इसके corresponding chord के द्वारा center पे बनाया गया angle, right? So you can see they are same. आप चाहे तो आप arc AB के जो center पे angle बनाया वो बोल लो, या फिर आप chord जो कि इस arc के corresponding है उसके द्वारा center पे बनाया गया angle, they are the same thing, right? So here you can see that is written that the angle subtended by an arc at the center, you can see, is defined to be the angle subtended by the corresponding chord, right? So arc के द्वारा बनाया गया angle कौन सा है? जो कि उसके corresponding chord के द्वारा बनाया गया angle है. So both things are same क्योंकि वो दोनों center पे ही angle बना रही है. Now you can see in the sense that the minor arc subtend the angle and the major arc subtend the reflex angle. So अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज explain करने वाला हूँ कि ये जो इसका मतलब क्या है. यू कैन सी अगर मैं इस कोड AB की बात करूं, सो आप देख सकते हैं ये जो आर्क है ये कौन सी आर्क है? माइनर आर्क. एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस इंट्रोडक्शन ऑल्सो. सो आप देख सकते हैं ये AB क्या है? माइनर है. आप देख सकते हैं साइज छोटा इस आर्क का, और ये वाली जो आर्क है दैट इज द मेजर आर्क. गेटिंग माय पॉइंट? So if you can just see this circle here, so इस circle में आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी. You can see this PQ is the minor arc. Let me just write it clear here. So minor arc. Let me just change the marker first, right? So you can see, so this PQ is the minor arc. Then this side PQ is the
मेजर आर्क, राइट। सो अगर आप बात करते हैं इस माइनर आर्क की, सो ये जो कोड है इसके कोरस्पॉन्डिंग में कौन सी आर्क आ रही है? माइनर आर्क, राइट। सो ऑलवेज माइनर आर्क सबटेंड द एंगल एट अ सेंटर। देन ये जो मेजर आर्क होगी दूसरी वाली, ये क्या करेगी? ये भी सेंटर पे एंगल बना रही है। यू कैन सी, अगर मैं इस आर्क की बात करूं तो ये सेंटर पे एंगल क्या बना रही है? ये वाला एंगल। यू कैन सी मेजर आर्क सेंटर पे क्या एंगल बनाएगी? ये वाला, विद द हेल्प ऑफ टू रेडियस, राइट। सो ये जो रिफ्लेक्स एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, राइट। यानी कि ये वाला एंगल जो है, अगर टोटल एंगल क्या होता है आपके पास? 360। सो अगर 360 में से मैं ये पीओक्यू एंगल माइनस कर दूं, सो ये कौन सा आता है? रिफ्लेक्स एंगल, राइट। सो यहां पे ये रिफ्लेक्स एंगल है POQ, राइट। सो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अगर मैं वो एंगल को 360 में से माइनस कर दूं, सो अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं POQ की, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है? 360 में से इस POQ को माइनस करूंगा, यानी ये वाला रिफ्लेक्स एंगल आएगा। समझ में आ रही है बात? अगर ये 30 है सपोज कीजिए, तो 360 में से अगर मैं इस 30 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 330। सो ये रिफ्लेक्स एंगल कितने का है? 330 का। नाउ यू कैन सी ये जो माइनर आर्क है ये तो सेंटर पे एंगल POQ बना रही है। सो ये जो मेजर आर्क है ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? रिफ्लेक्स एंगल। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज टेलिंग अबाउट। यू कैन सी, just reread this because this is a important thing here, right? So you can see minor arc subtend the angle and the major arc subtend the reflex angle at the center. आप देख सकते हैं माइनर आर्क तो सेंटर पे एंगल जनरेट करती है, बट मेजर आर्क जो है वो सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल जनरेट करती है. सो आई होप यू हैव गॉट द कंडीशन हियर, सो व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर. सो बेस्ड ऑन दिस थिंग नाउ कि हमें ये पता चल गया कि ये जो आर्क है जो कि कोड के कोरस्पॉन्डिंग है, ये सेंटर पे कुछ एंगल बनाती है. नाउ रिमेंबर द थ्योरम 10.1 you can see which says that equal chord subtend equal angles at the center, right? So जैसे कि हमें थ्योरम 10.1 में क्या पता था, let me just rewrite that thing first. So I'm just erasing this. So based on, let me just change the marker. So based on theorem 10.1 and this topic here, we can say that जैसे कि हमें पता था कि थ्योरम 10.1 क्या कह रही थी, दैट इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. यानी कि अगर ये दोनों इक्वल कोड्स हैं और ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो क्या है, इक्वल बना रही है. यू कैन सी दैट मीन्स कि इन दोनों इक्वल कोड के कोरस्पॉन्डिंग आर्क होंगी, यानी कि ये आर्क ही है जो इस सेंटर पे एंगल बना रही है. ये भी हम बोल सकते हैं इन रिलेशन विद थ्योरम 10.1. सो हियर दिस टॉपिक एंड थ्योरम 10.1 in correlation, we can say that, let me just write down. So congruent arcs, congruent, or you can say equal, congruent arcs subtend equal angles at the center, right? So this is what we can say now कि जो इक्वल आर्क्स होती हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल जनरेट करेगी. सो दिस इज व्हाट दिस टॉपिक लीड्स अस टू नाउ. सो बेस्ड ऑन दिस थिंग नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अनदर थ्योरम हियर. सो फर्स्ट लेट मी जस्ट रब ऑल दिस एंड राइट द स्टेटमेंट ऑफ दैट थ्योरम, राइट? सो लेट मी जस्ट रब दिस. So students, let us now directly jump on to the theorem here. So ये जो theorem है, let me just read this first. So theorem 10.8. So up to 10.7 we have done the theorems. So do remember, you have to just remember the theorems while discussing the questions, right? So आपको सारी theorems अच्छे से याद होनी चाहिए. So there's a task for you at home. So do revise all the theorems that I have explained you till this video, right? So just recall back all the theorems that we have done earlier. Now let me just tell you that this theorem 10.8 here is the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, right? So आप देख सकते हैं कि जो एंगल
आर्क सेंटर पे बनाती है वो क्या होता है, डबल होता है किसका, उसी आर्क के द्वारा एंगल बनाया गया किसी और पॉइंट पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री फिगर्स हियर, राइट. सो यहाँ पे सबसे पहले फिगर की हेल्प से मैं बताता हूं कि एक्चुअल में ये स्टेटमेंट जो है थ्योरम बोल क्या रही है, राइट. सो हियर यू विल फाइंड आउट कि ये जो PQ है, यू कैन सी दिस इज द आर्क. सो दिस इज नाउ अ माइनर आर्क. सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं, ये छोटा एरिया है, ये बड़ा है. सो ये क्या है, एक माइनर आर्क है. नाउ let me just tell you that PQ is a chord the corresponding to this arc. So ये जो chord है ये इस PQ minor arc के corresponding है. Now आप ये बोल सकते हैं कि if I just first erase this, so ये जो arc जो है जो center पे एंगल बनाएगी that will be POQ, right? चाहे तो आप बोल लीजिए arc बना रही है एंगल, या फिर आप बोल लीजिए PQ chord बना रही है. They are same. That I have told you earlier that in correspondence with theorem 10.1 which says that equal chords subtend equal angle at the center, then with respect to that equal arcs also subtend equal angle at the center. ये मैंने आपको बताया था. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं PQ क्या है, एक माइनर आर्क है इस कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट. सो यानी आप बोल सकते हैं या तो कोड सेंटर पे एंगल बना रही है या माइनर आर्क जो है वो सेंटर पे एंगल बना रही है POQ, राइट. इन दिस केस this PQ is a minor arc, right. So यहाँ पे आप देख सकते हैं the angle subtended by an arc at the center, you can see angle POQ here in this case, so is double. Now let me just tell you कि ये जो angle POQ है जो इस minor arc ने बनाया है PQ ने at the center, that is POQ, that is double, you can see twice, यानी 2 into, right. The angle subtended by this arc एट द रिमेनिंग पार्ट. अब आप देख सकते हैं इस आर्क के अलावा रिमेनिंग पार्ट सर्कल का कौन सा है, ये वाला द मेजर आर्क. सो मेजर आर्क के ऊपर जो पॉइंट है उस पे ये माइनर आर्क जो एंगल बनाएगी, यानी कि सेंटर के अलावा बचे हुए सर्कल के पार्ट के पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनाएगी दैट इज PAQ, राइट. उसका क्या होगा, डबल होगा. गेटिंग माय पॉइंट. सो दिस इज व्हाट दिस थ्योरम इज सेइंग हियर, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ फिगर 1 आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो माइनर आर्क है अगर वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है दैट इज एक्चुअली डबल द एंगल मेड बाय दिस आर्क एट अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट. सो यानी कि जो POQ एंगल है ये इसकी जो वैल्यू होगी मीजर में वो इस PAQ एंगल के डबल होगी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट टेल यू कि अगर ये एंगल जो है, लेट मी जस्ट फर्स्ट चेंज द मार्कर हियर. सो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए ये एंगल PAQ जो है दैट इज 30, राइट. सो हम कैसे पता चलाएंगे कि ये POQ कितना होगा. नाउ यू कैन सी ये जो PAQ एंगल है ये सेंटर के अलावा बचे हुए पार्ट के ऊपर एंगल है, और मुझे पता है कि ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा POQ वो क्या है, डबल होगा इस एंगल PAQ के, जो कि रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बना रही है ये माइनर का. सो दैट मीन्स कि एंगल POQ यानी सेंटर पे जो माइनर आर्क बनाएगी इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 into PAQ. सो PAQ कितना है हमें पता है दैट इज 30. सो 2 into 30 डिग्री दैट इज 60 डिग्री एंगल बनाएगी सेंटर पे ये आर्क. गेटिंग माय पॉइंट. सो यानी सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 60. सो रिमेनिंग पार्ट पे कितना एंगल है उसका आधा होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट. सो ये 60 अगर हमें पता होता तो उसका हाफ कर देते हैं, दैट मीन्स ये जो PAQ एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री, राइट. सो इन रिलेशन विद दिस यू कैन सी अगेन वी कैन जस्ट वाइस वर्सा हियर, राइट. सो यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो जो रिमेनिंग पार्ट पे बना है उसका डबल होगा, या आप ये बोल सकते हैं जो एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बना है वो सेंटर का हाफ होगा, राइट. सो दैट ऑल्सो एग्जिस्ट द सेम, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द थ्योरम हियर. नाउ इट्स टाइम टू प्रूव दिस थ्योरम, राइट. सो हमें ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि ये जो एंगल POQ है ये ट्वाइस है इस PAQ के, राइट. सो दैट विल बी डन फर्दर. नाउ लेट मी जस्ट फर्स्ट मेक सम स्पेस हियर. सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस थिंग हियर. So students, let us now move on to the proof of this theorem 10.8. So it's quite important, just understand it carefully, right? So यहाँ पे इस theorem 10.8 का proof हम कैसे करेंगे. यहाँ पे मैंने 3 figures लिए हैं. Let me first write first figure here. So आप देख सकते हैं इन तीनों figures में आपको arc PQ नजर आएगी. Let me just write down PQ arc, right? So आप देख सकते हैं इस first figure में ये जो arc PQ है ये क्या है,
माइनर आर्क है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं. सो इन द सेकेंड केस ये जो PQ आर्क है ये क्या है, इस सेमी सर्कल यानी कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स है, राइट. देन इन थर्ड केस यू कैन सी दिस PQ आर्क इज मेजर आर्क, राइट. सो यहां पे मैंने 3 केसेस ले लिए टू प्रूव दिस थ्योरम हियर, राइट. सो तीनों केसेस पे ये थ्योरम जो है अप्लाई होगी. लेट मी जस्ट मूव ऑन हियर. सो सबसे पहली चीज मैं इस फिगर के बेसिस पे इस थ्योरम को प्रूव करूंगा, दैट विल अप्लाई ऑन टू द रेस्ट ऑफ द फिगर्स टू, राइट. सो यहाँ पे तीनों फिगर्स में आप PQ को देख सकते हैं. यहाँ पे PQ माइनर आर्क है, यहाँ पे सेमी सर्कल है, देन यहाँ पे क्या है, मेजर आर्क है. सो स्टार्टिंग ऑफ माई प्रूफ हियर, नाउ यू कैन सी. सो सबसे पहली इट इज गिवन दैट यू कैन सी PQ इज एन आर्क subtending angle POQ at the center and angle PAQ at the remaining part of the circle, right. So अब यहां पे also we have to prove that angle POQ is 2, or you can say twice of PAQ. Let me just write it clear. You can see this is what we have to prove in this theorem. So I hope you understand what I have written here. So यहाँ पे हमें पता है तीनों केसेस में PQ क्या है, एक आर्क है जो कि एंगल बना रही है POQ एट द सेंटर. आप देख सकते तीनों केस में, ये देखिए POQ ये एंगल बन रहा, देन POQ ये एंगल बन रहा, देन POQ ये एंगल बन रहा. आप देख सकते हैं मेजर आर्क सेंटर पे क्या रिफ्लेक्स एंगल बनाती है. रिमेंबर दैट आई हैव टोल्ड यू, राइट. सो यहाँ पे सेमी सर्कल के केस में आप देख सकते हैं सेंटर पे एंगल 180 होगा, स्ट्रेट लाइन हो गई, राइट. सो यू कैन सी सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, 180, राइट. नाउ इन दिस मेजर आर्क case you can see the reflex angle is the angle made by the arc at the center. So यहाँ पे तीनों केसेस में आप देख सकते हैं POQ जो है वो सेंटर पे एंगल बन रहा है एंड PAQ जो है वो आप देख सकते हैं रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बन रहा है. यू कैन सी हियर, राइट. सो ये एंगल हो गया रिमेनिंग पार्ट पे. सो तीनों फिगर्स में कॉरेस्पॉन्डिंग थिंग चल रही है, यू कैन सी. सो स्टार्टिंग ऑफ माई प्रूफ नाउ, सो लेट मी फर्स्ट रब द स्पेस हियर. So you can see now, let us move on to the proof. So सबसे पहली चीज अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी क्लियर कर देता हूं एक ट्रायंगल की. सो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूं, यू कैन सी हियर, अगर सपोज कीजिए मैं इसकी एक साइड को एक्सटेंड कर देता हूं लाइक दिस, राइट. सो इस साइड को मैंने बढ़ा दिया. सो ये जो बाहर वाला एंगल होता है आपको पता है क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, राइट. नाउ इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट. सो अब इस एक्सटीरियर एंगल के साथ वाला जो एंगल है अंदर वाला, उसके अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है. एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ triangle. I hope you know, you have read this in the, you can see earlier classes also. So यहाँ पे you can see same property मैं apply करने वाला हूँ. Let me just show you here that in this, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैंने तीनों फिगर्स में क्या की है, A पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है which is passing through the center towards the point B, right? So B is somewhere here. So मैंने यहाँ पे इसको extend किया. So the first step is join AO and extend it to point B. Getting my point? So तीनों फिगर्स में आप देख सकते हैं मैंने AO ज्वाइन किया, उसको B पॉइंट तक एक्सटेंड किया, राइट. नाउ यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे ये जो पॉइंट B से ये जो एंगल बन रहा है दैट इज BOQ, वो इस यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, यू कैन सी दिस ट्राइंगल. सो इसकी इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है AOQ ट्राइंगल के लिए, राइट. सो यानी कि ये जो एंगल BOQ है, लेट मी जस्ट राइट डाउन.
सो एंगल BOQ जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे आपको अलग से एंगल बना के दिखाऊं, यू कैन सी लाइक दिस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये A है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट B है, राइट। सो आप ये वाला एक्सटीरियर एंगल देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल की मैंने इस साइड को बढ़ा दिया। सो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल लाइक दिस। सो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी इसके और इसके सम के। गेटिंग माय पॉइंट। सो आप देख सकते हैं एंगल BOQ जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एंगल OAQ प्लस AQOK। सो एंगल OAQ plus angle AQOK, right? So this is what we have derived till now. So let me just give it equation number first, right? अब यहां पे मैं again ये बात करता हूं, अगर मैं ये ट्रायंगल दोबारा लूं, you can see now let me first write that also in triangle AOQ. So सबसे पहले मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, you can see in the downside. Now you remember what we have to prove, that POQ is twice of PAQ. So I'm just not erasing this part here. This is what we have to prove, right? So that will just remember you what you have to do. So now let me just tell you कि इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहली चीज you can see जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, कि अगर आप इस सर्कल के अंदर देखें, ये OA डिस्टेंस क्या है, रेडियस है इस सर्कल की, OQ भी क्या है आपके पास, रेडियस है। सो ये OA और OQ क्या है, आपस में इक्वल है। नाउ OA इज इक्वल टू OQ। सो इस ट्रायंगल के अंदर आपको पता चल गया ये OA साइड जो है वो OQ साइड के इक्वल है इस ट्रायंगल के अंदर, यानी कि आप देख सकते हैं अगर ये OAQ, लेट मी जस्ट टेक ओनली दिस पार्ट। सो इस OAQ ट्रायंगल के अंदर आपको पता चल गया कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। सो आपको ये भी पता है एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, अगर इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी देन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। सो द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी। सो अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो यू कैन सी OA इज इक्वल टू OQ। सो OA के अपोजिट एंगल कौन सा है, AQO, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस OQ साइड के अपोजिट एंगल की, यानी कि OAQ को, राइट। सो यहां पे मुझे पता चल गया कि AQO एंगल जो है वो OAQ के इक्वल है, राइट। नाउ लेट मी जस्ट रिकॉल द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो यहां पे आप देख सकते हैं OAQ और AQO दोनों एंगल्स आ रहे थे और ये हमने इक्वल प्रूव कर दिए, राइट। सो लेट मी जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, सो यहां पे आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पे OAQ की जगह पे भी AQO लिख सकता हूं। सो यहां पे आप चाहे तो OAQ की जगह पे AQO लिख दीजिए या AQO की जगह पे OAQ लिख दीजिए, whatever you call it, right? So let me just rub the space above. So let me just divide this area. Now you can see if I just substitute OAQ की जगह पे AQO in equation number first here, right? So OAQ की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, AQO. So that will be, you can see angle BOQ that will be equal to AQO. आप देख सकते हैं OAQ की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, AQO plus again angle AQO, right? So AQO plus AQO that will be 2AQO. So angle BOQ जो है आप देख सकते हैं एंगल BOQ, ये वाला एंगल जो है वो इस AQO के डबल है। लेट मी जस्ट टेल यू कि हमें यहाँ पे इस एंगल की बात करनी है। सो मैं यहाँ पे अगर बेटर होगा कि AQO की जगह पे OAQ सब्स्टिट्यूट करूं, सो दैट विल मेक नो चेंज बट दिस विल गिव अस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन व्हिच वी नीड हियर। सो हमें यहाँ पे इस एंगल की बात करनी है ना, वो सेंटर के डबल है, तो मैं ये वाला एंगल लूंगा ना कि ये वाला एंगल। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज AQO की जगह पे OAQ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट विल बी बेटर। सो यू कैन सी देन एंगल BOQ will be equal to, you can see angle OAQ as it is। अब AQO की जगह पे क्या लिख सकता हूं, OAQ, क्योंकि ये दोनों सेम है। सो यहाँ पे मैं AQO की जगह पे एंगल OAQ सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो OAQ plus OAQ that will be 2 angle OAQ, राइट। सो एंगल BOQ आप ध्यान से देखिए, BOQ ये वाला एंगल जो है वो क्या है, डबल है किस एंगल के, OAQ के, इस एंगल के, राइट। सो इधर वाला पार्ट इसके डबल आ चुका है। नाउ सिमिलरली यू कैन सी अगेन दैट मीन्स कि BOP जो एंगल है ये वाला, ये इस एंगल के डबल होगा। सो सिमिलरली यू कैन सी एंगल BOP जो है
वो ट्वाइस होगा एंगल OAP के। यू कैन चेक आउट, यू कैन सी यहाँ पे एंगल BOP, ये वाला जो एंगल है वो OAP के भी ट्वाइस होगा, क्योंकि हमें पता है ये साइड इसके इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। देन सिमिलरली यू कैन गेट दैट एंगल BOP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OAP। सो यहाँ पे ये भी आ गया हमारे पास। सो लेट मी जस्ट नाउ गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, सो BOQ प्लस BOP टोटल एंगल क्या बन जाएगा, POQ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करने पे क्या बन रहा है, POQ। देन यू कैन सी OAQ का ट्वाइस और OAP का ट्वाइस, इन दोनों को ऐड करने पे कौन सा एंगल बनेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। यही हमें चाहिए, हमें ये प्रूव करना था कि POQ जो एंगल है वो ट्वाइस ऑफ PAQ है। सो दैट वी विल गेट बाय सिंपली एडिंग दीज इक्वेशंस। बट लेट मी जस्ट टेल यू, यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन दिया था, इसको सेकंड दिया था, so we have to give them third and fourth equation, right? Now let me just make some space here. So here you will find out we have to simply add equation number third and fourth, right? So that means on the left hand side में add करूंगा, that will be angle BOQ. Let me just write it clear here. So angle BOQ plus angle BOP. So ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, नाउ यू कैन सी ट्वाइस ऑफ एंगल OQA प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OAP, राइट। सो आप देख सकते हैं BOQ प्लस BOP, सो BOQ प्लस BOP, ये दैट विल बी POQ। एंड यू कैन सी दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2। सो अंदर क्या बचेगा, एंगल OQA प्लस एंगल OAP। आप देख सकते दोनों में 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, OQA प्लस OAP। So let me just check out now. Let me just tell you, I have just done again a little thing here. So that will be, you can see OAQ. So that will be, you can see OAQ plus OAQ, that will be OAQ. So I've just done a little mistake, OAQ plus OAQ, that will be 2OAQ, right? So let me just write that OAQ plus OAP. So यहाँ पे आप देख सकते हैं OAQ, let me यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, you can see OAQ. So there's a little mistake, you have to be careful while just proving this theorem, right? So आप देख सकते हैं 2 कॉमन लेने पे OAQ plus OAP, so OAQ plus OAP, so ये बन गया PAQ, so that will be 2PAQ equal to angle POQ. So this will prove the theorem that आप देख सकते हैं जो सेंटर पे एंगल बना रही है आर्क, that is POQ, वो क्या है, डबल है किस एंगल के, PAQ के, right? And this is what we have to prove in this theorem. So quite a lengthy one, but that leads to the end of this theorem, right? So that was all in this theorem. So students, now let us discuss 2 more theorems here which will further help us in solving the questions in the further exercise 10.5, right? So they are also important here for the questions. So you can see theorem 10.9 is that angles in the same segment of a circle are equal. So let me just tell you, सबसे पहले segment क्या होता है मैंने आपको बताया था in the introduction portion also. Let me just show you right here with the help of a circle. So आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे एक कोड ड्रॉ करता हूं, let me just name it as AB. So आप देख सकते हैं ये कोड और ये जो इसके corresponding ये माइनर आर्क है, इसके बीच का जो एरिया होगा that is minor segment, right? So आप देख सकते हैं माइनर आर्क और कोड के बीच का जो एरिया है वो क्या है, माइनर सेगमेंट। एंड यू कैन सी देन कोड और मेजर आर्क के बीच का जो रीजन है ये वाला, ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? सो मेजर आर्क और कोड के बीच वाला एरिया मेजर सेगमेंट, माइनर आर्क और कोड के बीच वाला एरिया माइनर सेगमेंट। सो आपको सेगमेंट समझ में आ गया, कोड और आर्क के बीच वाला एरिया। नाउ यू कैन सी हियर, let me just tell you that angle in the same segment of a circle are equal. So अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे एक PQ आर्क है, माइनर आर्क, यू कैन सी ये PAQ एंगल बना रही है और PCQ एंगल बना रही है इस रिमेनिंग मेजर आर्क के ऊपर, सेम साइड पे आप देख सकते हैं मेजर आर्क के ऊपर 2 पॉइंट्स के ऊपर, राइट? यानी PAQ और PCQ. नाउ यू कैन सी एंगल इन द सेम सेगमेंट. अगर मैं यहाँ पे कोड ड्रॉ कर लूं, सो ये नीचे वाला एरिया क्या होगा आपके पास, माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर वाला एरिया क्या होगा, मेजर सेगमेंट. गेटिंग माय पॉइंट? सो आप इसलिए मेजर सेगमेंट वाले एरिया पे 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सेम साइड पे.
गेटिंग माय पॉइंट? सो यू कैन सी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, आप देख सकते दोनों पॉइंट्स जो है ए और सी वो मेजर सेगमेंट में है, राइट, यानी कि सेम सेगमेंट में, यानी कि ए और सी पे जो एंगल बना रही है पी क्यू, दे आर इक्वल, राइट। सो ये थ्योरम बताती है, यानी कि एंगल पी ए क्यू और पी सी क्यू है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, लेट मी जस्ट शो यू हियर, राइट, क्योंकि मुझे पता है ये जो माइनर आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी दैट इज पीओ क्यू, वो डबल होगा इस एंगल पी ए क्यू के। गेटिंग पॉइंट? ये हमने पिछली थ्योरम से देखा कि सेंटर पे जो आर्क बनाती है एंगल दैट इज द डबल ऑफ द एंगल मेड बाय दैट आर्क ऑन द पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि ये पी ओ क्यू जो है वो डबल होगा पी ए क्यू के। ऑल्सो आप देख सकते हैं ये सी पॉइंट भी क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे है, यानी ये जो पी ओ क्यू एंगल होगा ये यू कैन सी डबल होगा पी सी क्यू के भी। सो आप देख सकते हैं दैट विल बी ऑल्सो एग्जिस्टिंग with the theorem that we have seen previous। so आप देख POQ भी 2 PAQ के इक्वल है, POQ 2 PCQ के भी इक्वल है, यानी ये एंगल जो डबल है इसके भी और इसके भी। so that means ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को नंबर दूंगा फर्स्ट और सेकंड, देन आपको पता चलेगा यहाँ पे, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर फर्स्ट, कि यहाँ पे POQ और POQ सेम है, यानी कि ये दोनों आपस में भी सेम होंगे। सो 2 PAQ इज इक्वल टू 2 PCQ, देन 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपके पास आ गया PAQ इज इक्वल टू PCQ। सो आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। सो यानी कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट आर इक्वल, राइट। सो आप देख सकते हैं दिस इज द थ्योरम इज सेइंग दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यू कैन सी PAQ और PCQ दोनों एंगल क्या है, सेम सेगमेंट में, राइट। ए और सी पॉइंट क्या है, सेम सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में, सो एंगल्स ऑन दैट विल बी equal, right? So this is what this theorem is saying about. Now let me just discuss also theorem 10.10 also, right? So here in this theorem 10.9 you can see 10 is saying here with the help of the second figure, I'm just explaining you this. So यहाँ पे theorem 10.10 क्या कह रही है, that if a line segment joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points lie on a circle, right? ये मैं आपको समझा देता हूं this whole statement है। आप देख सकते हैं the line segment joining 2 points। so आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए A और B, इसको ज्वाइन करके मेरे पास कौन सी लाइन आई, AB। now you can see this line segment joining 2 points subtend equal angles at 2 other points। so ये जो लाइन सेगमेंट है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है, ये सबटेंड कर रही है 2 एंगल्स, यू कैन सी 2 अदर पॉइंट्स पे। आप देख सकते हैं ये दोनों अदर पॉइंट्स हैं ऑन द सेम सेगमेंट, गेटिंग माय पॉइंट, द सेम साइड ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। अगर मैं इस लाइन सेगमेंट की सेम साइड की बात करूं तो ये सी और डी इस सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है इन दोनों पॉइंट्स पे इक्वल एंगल बनाएगी। यू कैन सी दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। तो दैट मीन्स कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, ये फिर सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, राइट, ऑन द सर्कमफ्रेंस, राइट। सो अगर आपको मैं बता देता हूं कि 4 पॉइंट्स अगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉनसाइक्लिक, राइट। सो हम ए बी सी डी को क्या बोलेंगे, कॉनसाइक्लिक, क्योंकि चारों पॉइंट्स क्या है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। सो लेट मी जस्ट रिकॉल दिस। सो ये स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या कह रही है कि दैट लाइन सेगमेंट मेड बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स हियर सो इज सबटेंडिंग एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स। सो आप देख सकते हैं ये जो लाइन सेगमेंट है सी और डी 2 अदर पॉइंट्स पे एंगल बना रही है, यू कैन सी ए सी बी एंड ए डी बी, राइट। सो यू कैन सी लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, so that means then the 4 points lie on a circle, right? so ये equal angles बना रही है on the other 2 points on the same side of the line segment। so ये दोनों angles equal है, that means कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं देन क्या करेंगे, सर्कल के ऊपर लाई करेंगे अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं देन, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस थ्योरम 10.10 says। so you can see that was all the theorems that needs to be discussed before moving on to the exercise 10.5 because they are going to play a major role in solving the problems there, right? so I hope you have understood all the theorems that have been told to you। so this is your task now that up to theorem 10.10 you have to revise all the theorems at home on yourself। so that's all from my side and good luck।